Hello everyone and welcome to Pendulum EDU guys. Thank you for joining in, and here we are back again with the weekly quiz as promised. Guys, this weekly quiz that we bring for you is for the entire week. The editorial that we discuss with you, जितने भी words वहाँ हम आपके साथ discuss करते हैं, we bring you a quiz based on those words. डेफिनेटली गाइज आपको मंथली जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दी जाती है वो तो वहां पर है ही, साथ के साथ है वी आर विद द वीकली क्विज जो आपको हर संडे हम देते हैं। अलोंग साइड गाइज मैंने आपको कल भी बताया था कि बैंकिंग अवेयरनेस का जो हाफ ईयरली बुक है वो लॉन्च किया अभी हमने रिसेंटली, तो आप हमारी साइट पर जाकर दैट इज pendulumedu.com आप वहां जाकर स्टडी मटेरियल सेक्शन से यू कैन गेट दैट इन द बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट। गाइज डू प्रैक्टिस, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर देम एंड फ्रूटफुल एट द सेम टाइम। सो गाइज दिस इज फॉर जुलाई टू दिसंबर 2020 which will be extremely beneficial for you guys. All right, so do get it for yourself. चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज गाइज। यू कैन गेट मी योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके चलो लेट्स बिगिन। The very first question, as you see, we have the scientists speculated the impact of the natural disaster. Speculated. The scientists ने क्या किया है? Speculate किया. This is somewhere wherein we are actually estimating something. We're trying to estimate something. किसी चीज का अनुमान लगा रहे हैं हम. That is speculation. Now, the noun form for this word is speculation. Okay. Now, this we had discussed. Shun is there, spun is there, avoid and surmise. So we need a word that is similar in meaning, which means we need a synonym. So shun is to avoid something or to shut something. Spurn is to reject something. Avoid, again, you know, to neglect something, right? And surmise is to actually gather or to estimate something. किसी चीज का अनुमान लगाना, अंदाज लगाना, that is surmise. So speculate का जो synonym guys क्या होगा यहाँ पर? अभी देखो मैंने सारे words के meaning बता दिए, तो जितने लोग आंसर देंगे ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं, that is absolutely correct. Yes, definitely D is the correct answer right here for this very question. That's right guys, that's correct. Moving ahead, we have the next one which says, again अब यहाँ देखो, you need the most opposite. Okay, you need the most opposite here. So it says it was evident that the team would not be served by her incarceration. What is incarceration? If you do not know, अगर आपको इस word का meaning नहीं पता, then options पर जाकर भी कोई फायदा आपको नहीं होगा. So definitely you should be knowing the meaning. ये इसका मतलब होता है किसी को अगर आप जेल कर दो या imprisonment. That is what incarceration is. So incarceration हमने पढ़ा था अभी जो हमने आर्टिकल किया था फॉर राजीव गांधी असैसिनेशन केस, वहां पर हमने ये वर्ड पढ़ा था incarceration, राइट? इंपॉर्टेंट मैंने तब भी कहा था, इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी पूछा जाता है. Okay, so it's definitely important for you guys. Options हमारे पास है privilege, arbitrate, detention, intrude. अब देखो synonym detention हो जाएगा, बिल्कुल ये इसका क्या हो जाएगा? synonym हो जाएगा detention. ठीक है, opposite पूछ रहे हैं तो क्या होगा guys? quickly answer. What will be the opposite incarceration का? Yes, the opposite will be privilege. अगर आप किसी को कोई privilege, कोई advantage दे रहे हो, then it is definitely going to be the opposite of imprisonment, because एक तरफ है punishment, एक तरफ है benefit, तो वो opposite हो जाएंगे. Guys, वो चीज देखो थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा. You have to understand or try to decode a bit कि हमेशा डायरेक्ट सिनोनिम और डायरेक्ट एंटोनिम दिए हो ऐसा जरूरी नहीं है. There may be times wherein आपको थोड़ा सा वो डिफरेंशिएट करके देंगे जहां आपको कंफ्यूज करने की कोशिश भी की जाती है, बट आई एम ट्राइंग यहाँ पर मैं आपको वही उसी तरीके से करा रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो ऑनलाइन के, ये आपको डिफेंस एग्जाम्स में भी आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं. सो एनीवेज ये वोकैबुलरी आपको वैसे भी हेल्प करेगी
and in terms of your question practice वैसे भी दोनों तरह से you will. So what are we doing? We're killing two birds with one stone, right? So that is what. आप दो तीर से एक निशाना कर रहे हो ऐसे, ठीक है? चलो, एक तीर से दो निशाने, सॉरी, दैट वे. चलिए, आर्बिट्रेट का मतलब होता है बीच बचाव करना, ठीक है? इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना, जबरन कहीं घुस जाना, या फिर कहते हैं ना एक इंटरफेरेंस जो होती है उसको हम इंट्रूड कहते हैं. इसका जो नाउन फॉर्म है वो इंट्रूजन है. क्या है नाउन फॉर्म? इंट्रूजन है इंट्रूड का नाउन फॉर्म, ठीक है? चले, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन एज वी नीड अ सिनोनिम फॉर कन्विक्ट. गाइस, कन्विक्ट का मतलब इल्जाम लगाना, टू टेक टू हैव द ब्लेम, ठीक है भाई? किसी चीज में इन्वॉल्व होना, किसी इन्वॉल्व किस में होना? क्राइम में, गलत काम में अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है, then you will be convicted in that particular thing or you will be convicted in that scenario, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखो ऑप्शंस हमारे पास है implicate, clear, acquit, abandon. Quickly answer it. Which one will be your choice, guys? जल्दी से बताएंगे convict के लिए क्या आंसर होगा, A, B, C और D. Clearly, if we see, मैंने आपको word का meaning बता दिया है. I'm going to give you the meaning of the options as well. Implicate का मतलब होता है incriminate करना, मतलब किसी गलत चीज में involve होना. बिल्कुल, इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम और समथिंग विल बी इम्प्लिकेट. तो आपके पास तो आगे जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको इम्प्लिकेट का मतलब पता है, देन आंसर विल ऑटोमेटिकली बी ऑप्शन ए. डेफिनेटली फॉर कन्विक्ट द सिनोनिम इज गोइंग टू बी इम्प्लिकेट. ओके, इम्प्लिकेट विल बी द सिनोनिम राइट हियर बिकॉज यू डोंट हैव टू गो फर्दर, यू हैव योर आंसर राइट हियर. क्लियर इज समथिंग दैट इज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना स्पष्ट, दैट इज क्लियर. Acquit is to give up. Acquit is to give up, जिसको हम एक और वर्ड यूज करते हैं absolve. That is also to give up, ठीक है? Abandon भी क्या होता है? Give up कर देना या फिर किसी चीज को त्याग देना. To leave something, to leave or to desert something, किसी चीज को खाली छोड़ देना, किसी जगह को खाली कर देना, that is also abandon. Okay? अब आप abandon को यूज कर सकते हो as a verb, as in वर्ब फॉर्म में. जब आप उसको पास्ट फॉर्म में यूज करोगे, abandoned. ओके, नाउ सो पांचों वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होते हैं, कन्विक्ट, इम्प्लिकेट, क्लियर, अक्विट एंड अबैंडन. लेट्स गो अहेड ऑन द नेक्स्ट वन. जिन्होंने इसके लिए आंसर किया ऑप्शन ए, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. Next, you see we have a synonym for probe, guys. This is an important word and nowadays nobody uses investigation. Most of the articles or people even talking in their general conversations also, we talk about probes and not investigation. Probe means investigation, ठीक है? छानबीन करना, that is probe. अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे अपना. It will be declare, inquest, announce or look. What would be the correct one? So we have a probe, that is declare, inquest, announce and look. Which one do you think is the correct answer? Declare, भाई कोई चीज घोषित कर देना, so that is to state something, ठीक है? Inquest होता है inquire करना किसी चीज के बारे में. Announce is again to tell, to act. It is basically, announce would be that you're declaring something, ठीक है? Widespread. Look is like देखना, so that won't be. See, look in is investigation. Look into, that will be investigation. But here declare, announce or look nahi, answer will be option B. Yes, that's absolutely right. Those who have answered or those who have thought that option B, that is inquest, that is absolutely correct, guys, for you people. That will be the correct answer. Now, if you guys see, whenever probe comes, okay, whenever probe comes, now remember this, that it is relative to investigation. The reason is that this word is ideally used, or if you talk about in present scenario, this word is generally used nowadays. Like as I say, that the more often people, or more frequently people used to use investigation, nowadays they are using probe. Okay, chaliye.
नेक्स्ट इज वी नीड एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर स्टैगरिंग गाइस। स्टैगरिंग ग्रोथ हमने बात की थी एडिटोरियल में, मैंने आपको ये फ्रेज कहा था कि ये कॉलोकेशन है, ये इसी तरह काम करता है इन ग्रामर। ये कॉलोकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसे कॉलोकेशन के सेक्शन में काउंट करते हैं। सो स्टैगरिंग इज एन एडजेक्टिव गाइस। स्टैगरिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, लाइक अस्टाउंडिंग हमने एक वर्ड किया था। सरप्राइजिंग, दैट इज समथिंग दैट इज यू नो कंप्लीटली अम्यूजिंग। कोई चीज आपको एकदम शॉक कर देती है, कोई चीज से आप एकदम शॉक हो जाते हो, दैट इज अस्टाउंडिंग, शॉकिंग, दैट विल बी स्टैगरिंग। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने ये वर्ड बोला अस्टाउंडिंग, यही ऑप्शन में दिया है, तो आई डोंट थिंक दैट यू माइट बी फेसिंग मच ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल ऑप्शन सी सही आंसर है। बाकी वर्ड्स देखिएगा, ये जो easy, plain, simply, this is an adverb, this is an adverb and it means something that can be done easily. Okay, so for staggering it will be shocking. दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं appalling, ठीक है। appalling मतलब बहुत ज्यादा shocking, ठीक है, full of shock, that is staggering. Alright, चलिए let's go ahead now. The next one we need frailty. We have frailty. What is frailty? Noun है frailty, ठीक है। ये वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमी के टर्म्स में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की इकोनॉमी फ्रेल मोमेंट, फ्रेल का मतलब क्या था? वीक। फ्रेलिटी क्या होगा? वीकनेस, वीकनेस, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट, ठीक है। तो वीकनेस की अगर हम बात करें तो इसका ऑपोजिट चाहिए, क्या होगा गाइस? जल्दी से बताएंगे। ए, बी, सी और डी। रॉबस्ट, रीबूट, रिडंडेंट, इन्फर्मिटी। अभी रीजन क्या है? हमें वर्ड्स के ये जो 4 ऑप्शन में दिए हैं, वी शुड नो दोज वर्ड्स एज वेल, otherwise answering or like being able to answer it will never be possible because you will get confused at one or the other point, right? For that keep revising guys. word of the day आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो वो वर्ड ऑफ द डे आपको रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको सिनोनिम एंटोनिम्स देते हैं, वहाँ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस देते हैं कि आपको क्लियर वे में वो वर्ड अंडरस्टैंड आप कर पाओ। अच्छा, और वहाँ पर जो हम वर्ड ऑफ द डे आपको सेक्शन देते हैं गाइस, उसमें हर वर्ड का अगर वो एक पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी यूज होता है तो हम वो भी आपको मीनिंग साथ के साथ बताते हैं। तो आप उसको बिल्कुल देखिए, आप अपनी खुद की डिक्शनरी बना लीजिए। वर्ड ऑफ द डे को आप नोट कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। ओके गाइज, सो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू गाइज। नाउ हियर रॉबिस्ट, जिन्होंने कहा है ऑप्शन ए आंसर सही है, बाकी आंसर्स गलत है। देखिएगा, मैं आपको मीनिंग बता दूं। रॉबिस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो वीकनेस, ओके फाइन, सो ये ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, वी नीड एन सिनोनिम, तो सिनोनिम के लिए इन्फर्मिटी होगा, इन्फर्मिटी होता है वीक, ठीक है। रॉबस्ट एंटोनिम हो जाएगा, बट हमें सिनोनिम चाहिए। सो रीबूट इज रिवाइव, किसी चीज को दोबारा से शुरू करना या उस चीज को दोबारा से इस्तेमाल में लेके आना। रिडंडेंट इज समथिंग दैट्स ऑफ नो यूज। एक वर्ड हम यूज करते हैं ऑब्सोलीट, वो इसका सिनोनिम है, ठीक है, वो इसका सिनोनिम होगा। तो गाइस फ्रेलिटी के लिए सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज इन्फर्मिटी। रॉबस्ट जो है वो उसका एंटोनिम हो सकता है बिकॉज दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग। And reboot and redundant I've just now told you, so I hope all the words I have made clear to each one of you. Okay, yes, those who have answered D, it's absolutely right. Let's go ahead with the next one. We have yet another synonym we need for aberration. Aberration के लिए हमें चाहिए, aberration का मतलब क्या होता है पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। Aberration is noun and aberration means some sort of deviation. डिस्ट्रैक्शन कह सकते हो आप, ठीक है, अपने पथ से भटक जाना, डाइवर्ट हो जाना, डेविएट हो जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, दैट विल बी एबैरिशन। सो वी हैव नॉर्मल, वी हैव रेगुलर, डाइवर्जेंट एंड स्ट्रेट। विच वन वुड बी? अब देखो, रेगुलर और स्ट्रेट तो ऑपोजिट हो जाएंगे, बट हमें सिनोनिम चाहिए। नॉर्मल अबैरिशन का कहीं से भी सिनोनिम नहीं है बिकॉज नॉर्मल सिचुएशन मीन समथिंग दैट्स यूजुअल,
but it won't be, you know, deviating or diverging. So we can eliminate. अभी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन. देखो भाई, मैंने टेक्निक आपको सिखाई है आंसर डिराइव करने की, बट क्योंकि हम यहाँ पर वर्ड्स के मीनिंग भी आपके साथ डिस्कस करें, इसलिए आपके लिए थोड़ी सी आसानी है. पर जब आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है गाइस. इसलिए मैं कहती हूँ हिंदू एडिटोरियल जो सेशन है रेगुलरली अटेंड कीजिए, ठीक है. तो जो लोग अभी अटेंड नहीं करते हैं गाइज, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. इवन लाइक एवरी सिंगल डे एट 9 AM वी हैव दिस सेशन. तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, कल से ही ज्वाइन कीजिए. 9 बजे वी विल बी देयर लाइव, एंड वहां पर आप अपने डाउट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. ओके, चले, ऑन रेगुलर बेसिस. नाउ divergence is the correct answer because that would mean the, you know, deviation, distraction. Divergence, जैसे divergence होती है ना, आप देखते हो रोड्स पर भी अगर कहीं पर कुछ काम चल रहा है तो divergence होती है. वहां पर आप रास्ता आपका क्या कर दिया जाता है, चेंज, आपको वो डेविएट करना पड़ता है रास्ता, ठीक है. So that is why aberration will be a synonym to divergence. Okay, so I hope this clarifies. So, जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है उनका रिस्पॉन्स. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलिए, लेट्स गो अहेड एंड हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट वन. नाउ वी नीड एन एंटोनिम, वी नीड एन ऑपोजिट टू वॉचफुल. गाइज, वॉचफुल एडजेक्टिव है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. इसका मतलब होता है टू बी कॉशियस. टू बी कॉशियस, सतर्क रहना किसी चीज को लेके, ठीक है. दैट इज वॉचफुल. सो इफ वी टॉक अबाउट ऑपोजिट, व्हाट विल दैट बी? परसेप्टिव, विजिलेंट, इनअटेंटिव और रिआइटरेट. जल्दी से मुझे बताएंगे व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस. वी हैव परसेप्टिव, विजिलेंट, इनअटेंटिव एंड रिआइटरेट. देखिए, परसेप्टिव मीन्स समथिंग दैट इज इन योर परसेप्शन, लाइक परसेप्शन से रिलेटेड है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक ऑफ फ्यूचर, आप आगे का सोचते हैं, सो दैट वे यू कैन से परसेप्टिव. ये किसी के परसेप्शन में है, व्यू पॉइंट में है, ठीक है. विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल होना. तो विजिलेंट जो है वो वॉचफुल का सिनोनिम हो सकता है, पर हमें एंटोनिम चाहिए. इनअटेंटिव क्या होता है भाई? केयरलेस. लीजिए, हमारा आंसर यहीं पर है. यस, बिल्कुल, जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनअटेंटिव होता है जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो केयरलेस हैं. तो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. द आंसर विल बी ऑप्शन सी. Reiterate क्या है? It's a verb. It means to state again. To state again, दोहराना किसी चीज को. That is reiterate. ठीक है. So definitely D cannot be the answer. So it is C. Option C is the correct answer for all of us right here. That is inattentive. Okay. चले, moving ahead. The next one we have stance. What does stance mean? Stance noun है. चलिए से बताएंगे अगर आप में से किसी को पता है कि stance का मतलब क्या है. Guys, stance is the view point of someone. किसी के सोचने का तरीका, या फिर आप कह सकते हो point of view, जिसको हम स्टैंड पॉइंट भी कहते हैं. वी से व्यू पॉइंट, वी से स्टैंड पॉइंट, ठीक है. तो स्टैंड्स को हम स्टैंड पॉइंट या व्यू पॉइंट भी कहते हैं. अभी हमारे पास ऑप्शन में है रिकैपिचुलेट, व्यू पॉइंट, डिस्ट्रैक्ट and derail. Okay, so if I talk about recapitulate, recapitulate is a verb which means to summarize. To summarize, ठीक है, किसी चीज को summarize करना, that is recapitulate. Viewpoint, guys, we have got our answer. Yes, definitely B इसका आंसर होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है viewpoint, और ये हमारा आंसर है. Distract किसी को भाई डिस्ट्रैक्ट करना, या फिर एक तरीके से आप किसी को क्या कर रहे हो, डिविएट कर रहे हो, उनका ध्यान भटका रहे हो. सो डिविएट विल बी द सिनोनिम. डीरेल क्या है गाइज? अगेन, सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डिस्ट्रैक्टिंग. दैट इज डीरेल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, somebody is going on a regular route, ठीक है, कोई अपना तरीका फॉलो कर रहा है और आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, तो वो अपने पथ से भटक जाते हैं. दैट वुड बी डीरेल. सो दैट इज डीरेल. सो डिस्ट्रैक्ट एंड डीरेल, यू कैन से दैट दे वुड बी सिनोनिम. ओके, दे वुड बी सिनोनिम. चलिए, सो दिस इज क्लियर. दिस वाज एन इजी वन बिकॉज क्लियर वर्ड वाज गिवन.
Let's go ahead on the next one. We need a similar word. Similar underlined word के लिए हमें similar word चाहिए. लिखा है the newly announced scheme allows for the partial remission of tuition fees. So यहाँ जो नई स्कीम अनाउंस हुई है वो ट्यूशन फीस का आधा हिस्सा रिमिट कर देती है. रिमिट कर देना मतलब माफ कर देना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एग्जेम्प्ट कर देना. क्या? एग्जेम्प्ट. जैसे टैक्स में हमें एग्जेम्पशंस मिलते हैं, ठीक है, तो दैट वे यहाँ पर नई स्कीम किस चीज के लिए एग्जेम्प्ट कर रहे हैं? ट्यूशन फीस आदि. तो एग्जेम्प्ट से रिलेटेड वर्ड ढूंढते हैं ऑप्शन में. बताएंगे जल्दी से मुझे अपना आंसर. रेवोकेशन, solved, independent, unparalleled. Guys, quickly, I want you guys to let me know your responses. Revocation, solved, independent, and unparalleled. What would be the correct answer? Quickly, guys, tell me about it. Now, revocation, बिल्कुल किसी चीज को कैंसिल कर देना, खत्म, एंड कर देना, एनल कर देना, ठीक है. सॉल्व, किसी चीज को आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है. और यहाँ पर इंडिपेंडेंट, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिपेंडेंट हो मतलब आप फ्री हो, लिबरल हो, राइट. अनपैरेलल होता है अनमैच्ड गाइस, अनमैच्ड. तो यहाँ पर रिवोक कर देना किसी चीज को हटाना, रिमूव करना, तो वो रेमिट्स के सिनोनिम है. तो हमारे पास आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज रेवोकेशन. राइट गाइस, we have an answer right here, that will be option A. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके साथ. Let's go ahead. We have he is known for clemency. Clemency noun, मैंने आपको rhyming word बताया था guys एडिटोरियल में इसका, that was mercy, right. तो इसका मीनिंग क्या है? mercy, जो काइंड है, कोई जेनरस है, जिसको सिंपथी है दूसरे से, that would be a person who has or who possesses clemency. Severity और harshness जो है वो सिनोनिम, क्योंकि ये होती है rude, being rude और being serious. तो ये तो इसके similar words नहीं हो सकते, हमें synonym चाहिए है, right. तो ये opposite हो सकते हैं, synonym नहीं हो सकते. Mildness बिल्कुल जिसे हम कहते हैं kindness, या जो कि थोड़ा सा peace से रिलेटेड है. तो बिल्कुल क्लेमेंसी के लिए हमारा आंसर होगा यस, सी, ऑप्शन सी. कन्विक्शन क्या होता है गाइस? बिलीफ होती है, बिलीफ, ठीक है. कन्विक्शन इज बिलीफ. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ऑल हैव कन्विक्शन दैट वी विल सक्सीड, राइट. सो कन्विक्शन इज बिलीफ. ओके, चले मूविंग अहेड ऑन टू द नेक्स्ट वन. वी हैव द नेक्स्ट वन एज welter means. Now what does this word welter mean? So welter ideally देखो welter जो है आप noun form में भी यूज कर सकते हो और verb form में भी. noun की तरह welter का मतलब होता है turbulence, ठीक है, जो कि एक होता है ना, एक turbulence आ जाता है सब कुछ. and verb की तरह it means to cause turbulence, ठीक है. तो दोनों में इसे मीनिंग सेम है कि डिस्टर्बेंस हो रही है, चीजें इधर उधर, बट यहाँ पे जैसे केओस का मतलब है, ठीक है, और ये कॉजिंग केओस, यहाँ केओस करना, और वहां पर नाउन की तरह वो खुद केओस मीनिंग हो जाता है उसका. तो इट कैन बी यूज इन नाउन फॉर्म ऑल्सो एंड वर्ब फॉर्म ऑल्सो. नाउ वेल्टर हियर वी हैव बीन गिवन ऑप्शंस एज अनस्टेबल, फिक्स, ट्रिवियल, माइनर. जल्दी से मुझे बताएंगे गाइस, अकॉर्डिंग टू यू, will it be A, B, C or D? I want your responses guys. Be quick in responding. Here unstable, fixed, trivial. Guys trivial और minor अगर आप देखो तो मैं क्या कहूँगी इनको? Insignificant. Insignificant जो कि चीजें unimportant हैं, ज्यादा जरूरी या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो होंगी trivial या फिर minor कह सकते हैं, ठीक है. इनको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रिवलस ऑल्सो. फ्रिवलस जो सिली चीजें होती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनका ज्यादा महत्व नहीं होता है, दैट इज ओके. तो ये वेल्टर से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो हम ऑप्शन सी और डी को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट. अभी फिक्स को भी, क्योंकि फिक्स का मतलब होता है स्टेबल, स्टैटिक.
तो ये ऑपोजिट होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका मीनिंग चाहिए। तो वेल्टर का मीनिंग फिक्स भी नहीं होगा, वी कैन रिमूव बी ऑल्सो। सो डेफिनेटली यस, वी हैव अ आंसर एज ए बिकॉज दैट मीन्स अनस्टेबल, राइट? दैट मीन्स unstable, so we have our answer right here. Chale, that's great guys, that's great. So those who have answered it to be option A, वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके साथ, लेट्स गो है। अब देखिए ये पेयर का क्वेश्चन है, जैसे हम काफी सारे टाइप्स कर चुके हैं वोकैबुलरी के, तो अब आपको सारे टाइप्स पता ही हैं कि एग्जाम, चाहे डिफेंस एग्जाम हो, चाहे कोई भी तरह का एग्जाम हो, किस तरह की आपको क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न। नाउ यू आर अवेयर ऑफ एवरी पैटर्न गाइस विद अस हियर एट पेंडुलम वीडियो। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन टाइप है, ऑनगोइंग इज टू कंटिन्यूइंग, ये क्या है, रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक है। ये देखो आईबी के पेपर में भी ऐसा ही आपको पेयर का क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको तब भी प्रैक्टिस कराया है, यही चीज आपको सीडीएस में भी देखने मिली है, ठीक है। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्म में कह लो या वर्ड डायरेक्ट वर्ड मीनिंग के फॉर्म में कह लो, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे, आईबी का एग्जाम भी है और रिविजनरी क्लासेस अटेंड करना ही है, ठीक है। चलिए ऑनगोइंग इज टू कंटिन्यूइंग, तो ये क्या है, सिनोनिम का पेयर बता रहा है ना, दिस इज सिनोनिम राइट हियर। एज क्रूशियल इज टू, भाई क्रूशियल का सिनोनिम ढूंढना है हमें। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, जो चीज इंटेंस है, जो चीज थोड़ी सी सीरियस या सिंसेयर मोड में है, दैट, ठीक है, ओके, दैट इज क्रूशियल। तो लिबरल का मतलब होता है फ्री, तो लिबरल तो नहीं हो सकता इसका सिनोनिम। डेडलॉक गाइस, डेडलॉक का मतलब एक एंड जहां हम पहुंच चुके, जहां पर आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती, दैट इज क्रिटिकल। यस, सो वी हैव अ आंसर एज क्रिटिकल। क्रूशियल का सिनोनिम क्या होगा, क्रिटिकल विल बी द करेक्ट सिनोनिम फॉर क्रूशियल। थ्रेशहोल्ड इज द लिमिट or the particular limit wherein something can begin, ठीक है, that is threshold। जैसे किसी चीज का थ्रेशहोल्ड होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ ये पर्टिकुलर लिमिट मैंने सेट की हुई है इस चीज के लिए, सो दैट विल बी द थ्रेशहोल्ड फॉर दैट। सो थ्रेशहोल्ड इज द लिमिट दैट वी डिसाइड फॉर पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो हियर क्रूशियल के लिए हमारा आंसर क्या होगा गाइज, हमारा आंसर होगा क्रिटिकल फॉर क्रूशियल, दैट इज ऑप्शन सी। तो जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, वी हैव नेक्स्ट वन, इम्पैस। व्हाट इज इम्पैस? इम्पैस इज नाउन विच मीन्स डेडलॉक। एक ऐसे पॉइंट पर आज, इम्पैस इज अ पॉइंट वेयरइन देयर इज नो you cannot go ahead, okay, it is a point wherein you get stuck at particular thing, ठीक है। किसी चीज में एक जगह पर आके फंस जाना, आगे उसमें आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज इम्पैस। सो हमें इसका मीनिंग चाहिए, एड, ड्यूरेबिलिटी, स्टैंड स्टिल एंड लिबरल। व्हाट विल बी दैट? ए बी सी डी, जल्दी से मुझे मीनिंग बताइए कि गाइस क्या होगा, व्हाट वुड बी द आंसर इम्पैस के लिए। देखो एड का मतलब होता है टू हेल्प समवन और टू सपोर्ट, ठीक है। असिस्टेंस को हम एड कहते हैं, क्योंकि एड वर्ब के तरह भी आ सकता है और नाउन के तरह भी हम यूज कर सकते, राइट। ड्यूरेबिलिटी, किसी चीज को यूज करते हैं तो उसका जो लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्गेविटी जो होती है, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। स्टैंड स्टिल क्या होता है, एक जगह पे आके हम स्टक हो गए, तो हमारा आंसर मिल चुका है, इट इज स्टैंड स्टिल फॉर अस फॉर इम्पैस, दैट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लिबरल मीन्स फ्री, so this can definitely not be the answer, but stand still is the correct answer। so जितने लोगों का आंसर है ऑप्शन सी, that is absolutely correct। moving ahead we have the next one, reveal। रिवील गाइज, रिवील मीन्स टू शो, कोई चीज को जैसे हम किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिवील। डाइवल्ज का मतलब होता है टू मेक नोन, टू मेक नोन। डिस्गाइज इज टू हाइड गाइज, छुपाना। केयर फ्री मतलब केयरलेस होना। प्रूडेंट इज वाइज, टू बी वाइज, ठीक है। कोई अगर पर्सन कोई वाइज है तो उसको सही और गलत की समझ जरूर होगी।
सो यहाँ पर बहुत क्लियर है गाइज, रिवील, मैंने आपको सारे ऑप्शंस के मीनिंग अभी बताए. डाइवल्ज विल बी द करेक्ट बिकॉज दैट मीन्स टू मेक नोन, और रिवील का मतलब भी है किसी के सामने कोई चीज प्रकट करना, मतलब वो चीज का खुलासा करना. सो रिवील के लिए हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी डाइवल्ज. दैट विल बी. अब देखो डिस्गाइज जो है वो हाइड है, जिसको हम हिडस भी कह देते हैं या फिर कंसील कह सकते हो आप, ठीक है. यू कैन ऑल्सो से कवर्ड. सो ये सारे जो वर्ड्स हैं, कंसील, कवर्ड, डिसगाइज, इनका मतलब है आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप उस चीज को सामने, लाइक यू आर नॉट ट्राइंग टू एक्सपोज इट बट यू ट्राइंग टू हाइड इट. ओके, दैट वे इट विल बी डिसगाइज. नाउ हियर फॉर केयरलेस आई कैन यूज कैलस. आई हैव गिवन यू दिस वर्ड और मैंने कहा था कैलस केयरलेस से राइम करता है. सो डेफिनेटली, एंड कैलस किसका ऑपोजिट था गाइज? हमने बहुत अच्छे से ये वर्ड्स याद किए थे, क्लेमेंसी का ऑपोजिट है, बिकॉज क्लेमेंसी का मतलब है मर्सी एंड कैलस मीन्स समथिंग केयरलेस. ओके, सो ऑपोजिट, वो इनसेंसिटिव है और क्लेमेंसी जो है कि वो लोग दूसरों के प्रति सिंपैथी रखते हैं. क्लेमेंसी नाउन है और कैलस एडजेक्टिव है. सो गाइज इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच पर डिपेंड करता है हाउ दिस वर्ड, how the particular word will be used in a sentence. So definitely, जैसे prudent यहाँ दिया हुआ है, तो prudent is an adjective. I'll say he is a prudent man, right? That means he's a wise man, or she's a prudent lady. So that way I can use, but it will be used as an adjective. अच्छा, noun form में prudent क्या होता है? Prudence. Prudent का noun form क्या होता है? Prudence होता है. Okay? So I hope this makes it clear. ये पूरा जो रिवील के लिए हमारा आंसर, बिल्कुल जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन ए, उनका जवाब बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है. That will be A, divulge. So guys, these were all the words and questions that we had for you to discuss with you guys right here. So I hope कि आप सबको एकदम से फ्लैशबैक हो गया होगा जो वर्ड्स हमने आपके साथ डिस्कस किए थे वोकैबुलरी सेशन में. तो अगले हफ्ते भी हम आपके साथ इसी तरह से डिस्कस करेंगे वर्ड्स. जो लोग सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं या जो लोग बाद में देखते हैं गाइज, लाइव सेशन अटेंड करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज दैट इज व्हेन यू कैन come up with your doubts also. Okay, let your friends know about it. Those who are unaware, let them put up the benefit of the same. ठीक है, चलिए. So not to forget guys, like and share the session, and if you haven't subscribed the channel, subscribe it right away. Keep learning and growing, learners. I'll see you in the next session soon. Thank you so much.